So today we are starting the revision of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. In the previous chapter we had seen the magnetic effect of current. Current carrying conductor जो है कोई भी current carrying conductor magnetic field generate करता था और magnetic field से अब हम लोग current को generate कर सकते हैं ये सोचकर कुछ experiments किए and the first topic of this chapter is Faraday's experiments. So these are three sets of experiments. Faraday's experiment में he conducted experiment with the help of a coil. एक coil ले लिया and no source of EMF is present in the coil. Only a galvanometer is present. Galvanometer is a device which is used to detect current. अगर current यहाँ पर है तो current को detect करने के लिए अभी हम लोग galvanometer ले रहे हैं. We are having no source. And here you are having what a magnet. If a magnet is placed near the coil which is connected to a galvanometer, then no deflection is seen. But when the magnet is moved towards the coil, magnet को अगर coil की तरफ चलाएंगे, a momentary deflection is seen in the galvanometer. एक deflection मिलेगा और ये deflection तब तक exist करेगा जब तक ये magnet coil की तरफ move करेगा. So the deflection in the galvanometer exists only for the duration for which the magnet is moving towards the coil. और इसमें अभी हम कहते हैं the direction of deflection in the galvanometer gets reversed when the north pole is moved away from the coil. North pole अगर coil से दूर जाएगा तो इसमें एक deflection आएगा. ये deflection will be opposite to the deflection which was generated when the north pole is moving towards the coil. North pole coil के पास में आने पर जैसा current आ रहा था उसका opposite direction का current कब मिलेगा जब north pole को आप दूर लेकर जाएंगे. फिर उसके बाद तीसरा Now suppose this experiment is conducted with the help of a south pole. If south pole of the magnet is moved towards the coil, then also a deflection is seen in the galvanometer. यहाँ पर एक deflection मिलेगा और ये deflection इसमें is found to be opposite to the deflection when north pole is moved towards. North pole को पास में लाने पर जैसा current आ रहा है उसका opposite current कब मिलेगा when the south pole is moved towards the coil. And the fourth one now if the south pole is moved away from the coil, south pole if this is moved away from the coil, then the deflection is opposite to the deflection when south pole is brought near to the coil. South pole को पास में लाने पर जैसा करंट आया था उसका opposite current कब मिलेगा जब south pole को आप दूर लेकर जाएंगे. So we can say that the deflections obtained using a south pole are opposite to the deflections which are obtained when we use a north pole. North pole और south pole की जो deflections आएंगे वो just opposite आएंगे. North pole को पास में लाने पर जैसा deflection आया south pole को पास में लाने पर opposite deflection आएगा. And we have marked these with the help of what the direction of currents in the coil. तो इससे हम लोग बोलते हैं we can write down the definition about electromagnetic induction. तो electromagnetic induction क्या है? It is the process of inducing current in a coil due to relative motion between magnet and a coil. अब ये relative motion का मतलब क्या है? Relative motion का मतलब ये है कि अगर आप इसको रेस्ट पर रखकर, if the magnet is kept at rest, suppose the magnet is at rest, magnet अगर रेस्ट पर है
और कॉइल को अगर आप चला दें, then also deflections are generated in the coil. So whenever there is relative motion between the magnet and the coil, a deflection is seen in the galvanometer. This was the first set of 3 experiments which were conducted by Faraday. This was experiment number 1. Experiment number 2. अच्छा, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्टर द मोशन लार्जर इज द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर आप मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल को अगर आप फास्ट करोगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब ज्यादा ईएमएफ आएगा। और इसको, इस फैक्ट को अभी लोग आगे यूज भी करेंगे। फिर एक और फैक्ट जो अभी हम इसमें एक और जो ऑब्जर्वेशन था कि इफ द मैग्नेट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, देन नो EMF is generated। तो इसमें जो करंट जनरेट हुआ है उस करंट को अभी हम लोग क्या इंड्यूस करंट बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? द इंड्यूस करंट। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसी के जैसा है, बट नाउ व्हाट हैपेंस, द मैग्नेट इज नाउ रिप्लेस्ड विद दिस मैग्नेट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय व्हाट? अ करंट कैरिंग कॉइल। हम लोगों ने ये जो कॉइल लिया था जिससे एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो सेम ही है। अब मैग्नेट की जगह अब हम लोगों ने क्या ले लिया? वी आर रिप्लेसिंग दिस मैग्नेट बाय अ करंट कैरिंग कॉइल। और सारे ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम। इसमें ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगे कि अगर आप इस करंट कैरिंग कॉइल को इसके पास में लाओगे, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। करंट कैरिंग कॉइल को अगर दूर ले जाओगे तो भी एक डिफ्लेक्शन आएगा। और इसमें अगर आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर, इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या है? आप इसकी पोलैरिटी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका चेंज कर दोगे। इस कंडीशन में अभी हम लोगों ने बोला पोलैरिटी कुछ है, अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो पोलैरिटी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल चेंज। जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन जाएगा, जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल आ जाएगा। एंड इफ दिस इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, देन डिफ्लेक्शंस आर जनरेटेड। और अगर आप इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो भी इसमें डिफ्लेक्शंस आएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या? द मैग्नेट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय व्हाट? बाय अ करंट कैरिंग कॉइल। एग्जैक्टली। अब थर्ड इसमें एक्सपेरिमेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब हम लोग इसको मूव कर रहे थे एंड दिस वाज एट रेस्ट। नाउ वी आर हैविंग बोथ द कॉइल्स आर एट रेस्ट। both the coils are at rest। दोनों ही कॉइल्स रेस्ट पर हैं। अब इसमें जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। और उसके बाद आप इसमें कितनी भी देर करंट पास करते रहेंगे, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो जैसे ही स्विच ऑन किया, इसमें एक डिफ्लेक्शन आया एंड दिस डिफ्लेक्शन इमीडिएटली रिटर्न्स टू 0। जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और ये डिफ्लेक्शन जो है तुरंत या इमीडिएटली इट रिटर्न्स टू 0। उसके बाद आप बहुत देर भी करंट आप इसमें पास करते रहेंगे, नो डिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द galvanometer। सो वी कंक्लूड दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल ओनली व्हेन दिस इज स्विच्ड ऑन एंड नाउ व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। अभी हम लोगों ने स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन मिला, डिफ्लेक्शन तुरंत खत्म हो गया, मतलब इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट सिर्फ शुरू में आया, फिर उसके बाद बहुत देर आप करंट पास करते रहे, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब कोई इंड्यूस करंट नहीं आया। फिर जब आप स्विच ऑफ करोगे तब भी इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा और ये इंड्यूस करंट जो है इसका डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट टू व्हाट? ऑपोजिट टू द डिफ्लेक्शन व्हिच वाज सीन व्हेन द सर्किट वाज कंप्लीटेड। सर्किट को जब आपने स्विच ऑन किया था या की को जब आपने स्विच ऑन किया था तब एक डिफ्लेक्शन आया,
स्विच ऑफ करेंगे तब डिफ्लेक्शन इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन का आएगा. So we say that the induced current in this coil will be opposite in both the cases. कौन से दो केसेस? स्विच ऑन करने में और स्विच ऑफ करने में. तो इसमें इंडक्शन कैसा है? स्विच ऑन करने पर इंडक्शन आता है, स्विच ऑफ करने पर भी एक इंडक्शन आता है. तो अब ये तीन एक्सपेरिमेंट्स थे और इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में जो कॉन्सेप्ट या जो एक्सप्लेनेशन दिया that was based on the concept of flux. So I am rubbing this part, the experiment 2 and experiment 3, because we will be using these four diagrams in the next topic. So the explanation put forward by Faraday was based on the concept of magnetic flux. Magnetic flux क्या है? Suppose we are having a plane area. Suppose कोई एक plane area है. This is similar to the concept which we have studied in electrostatics. Suppose we are having a plane. अगर कोई एक plane ले लिया, plane area मतलब this can be similar to what a paper, a sheet of paper. This is plane, and if this is crushed कर देंगे तो plane नहीं बचेगा. So this is a plane, and the direction of this plane is given by the direction of normal drawn to the surface. This is area, और ये magnetic field का direction है. The magnetic flux associated with this will be given by B into A into cos theta. Theta is what? The angle between magnetic field and area. Area क्या है? Area vector का डायरेक्शन. By what? The direction of normal drawn to the surface. इसको और डिटेल में हम लोग आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. तो ये तो अभी हम लोग ने फ्लक्स लिया associated with what? A plane surface. If you are having an irregular shaped surface, कोई ऐसा सरफेस जो प्लेन नहीं है, जैसे फुटबॉल ले सकते हैं, यू कैन टेक अ रॉक आल्सो जस्ट फॉर एग्जांपल. कोई इरेगुलर शेप है और इसको आपने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अगर आपको बताना है, देन व्हाट वी डू, we'll divide this given surface into what? Very small parts. अभी हम लोग इसके बहुत छोटे पार्ट्स करेंगे. छोटे पार्ट्स क्यों करेंगे? Why will we divide this into small parts? To consider this as what? A plane surface. हम लोगों ने इसके बहुत छोटे पार्ट्स करे. जैसे फुटबॉल में अभी हम लोग बोलते हैं, फुटबॉल का एक छोटा सा पैच अगर आप ले लें, that can be considered as a plane. तो अब हम लोगों ने इसमें ये बोला कि suppose we are dividing this into very small parts, और इन छोटे parts, इसके parts इतने छोटे किए कि that each small part can be considered as a plane, and we are considering one such small part. Area of this small part is ds. इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. Flux associated with this small part d phi b. This will be given by what? B into ds into cos theta. Suppose this is theta. Flux associated with this entire surface कैसे मिलेगा? Phi b. This will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ डी phi b. तो क्या किया कि लोग पूरे सरफेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया.
छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हर छोटे पार्ट को आप कैसा मान सकते हैं? प्लेन सरफेस जैसा मान सकते हैं। हर छोटे प्लेन सरफेस के ऊपर आप फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे और ऐसे जितने भी फ्लक्स आएंगे उन सभी को ऐड करेंगे एंड दिस एडिशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी b into ds into cos theta, or this can also be expressed as what? b dot ds. तो फ्लक्स इसमें फिजिकली व्हाट डज दिस गिव यू? फ्लक्स देता क्या है? फ्लक्स क्या चीज बताता है? It gives us an idea about the total number of field lines which are crossing the given surface. तो इसमें जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट्स और लिखें। फ्लक्स दिस इज स्केलर क्वांटिटी, यहां पर लिखते हैं फ्लक्स इज व्हाट? A scalar and this is measured in terms of Webers. इसको हम लोग वेबर के टर्म्स में मेजर करते हैं और इसी से यूनिट बनती है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अगर तुम लोग याद हो, we had discussed the unit of magnetic field in the previous chapter. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या जाएगी? इसको हम लोगों ने वेबर मेजर किया है, ये मीटर स्क्वायर है, so we are having this unit as Weber per meter square. इससे भी हम लोगों को जो मेजर करते थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस कम्स फ्रॉम व्हाट? द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो वेबर आ गया और इस वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला बोलते थे, तो वेबर को अभी हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट डाउन दिस एज टेस्ला मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट्स में दिस कैन बी रिटन एज गॉस centimeter square. So these are the units of flux. अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, we'll be discussing the dimensional formula also. Phi is equal to b into a into cos theta. b का डायमेंशनल फार्मूला अगर याद नहीं है तो क्या करते हैं? सबसे इजी तरीका b का F is equal to ILB, ये यूज करते हैं। तो B की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? F अपॉन B की जगह क्या लिख लेंगे? F अपॉन IL इनटू एरिया को क्या लिख दिया? L स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। F is what? L T minus 2 और ये क्या है? L स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? I, this can also be written as A, एम्पियर से लिख सकते हैं इसको, I into L। तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर T minus 2 L स्क्वायर T minus 2 and I minus 2। So after defining magnetic flux, now we will be once again returning back to what? Faraday's experiments, और basically हम लोग first experiment को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So the explanation given by Faraday to the process of induced EMF is related to magnetic flux. ये साथ में नोट करते जाना है सारी चीजें। Just try to write down along with me. अब इसमें Faraday's laws of electromagnetic induction. The first law. First law फर्स्ट लॉ इसमें क्या होता है? whenever there is change in flux associated with any coil,
जब भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय फैराडे. Whenever flux changes, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं EMF is induced. Simple. फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ये है कि जब भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें एक EMF आएगा. एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है इसको फर्स्ट लॉ या फर्स्ट सेकेंड लॉ नहीं बोलते, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, कि whenever there is a change in flux associated with any coil, an EMF will be induced. Second statement क्या है? Second statement gives the value of the induced EMF. और induced EMF क्या होगा? Induced EMF is given by negative rate of change of flux. इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा भी हम लोग बोल रहे हैं हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि EMF, induced EMF, induced EMF is numerically equal to rate of change of flux with respect to time. And if this coil is having n turns, then this will be given by minus n d phi by dt. If the coil is having n turns, negative sign indicates that the induced EMF will oppose what? The change in flux. अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर इसकी पोलैरिटी ऐसी रहेगी that it will oppose the cause. That will be discussing in the subsequent topic. Minus sign जो है, this is related to what? The change in flux. Change in flux, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो पोलैरिटी ऐसी रहेगी that EMF will be the negative of the change in flux. इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे and that is what the Lenz law. तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज, और ये लेंज लॉ में बेसिकली कहा गया है कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस, किसको अपोज करता है? It opposes the cause due to which it is generated. Induced EMF उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण ये जनरेट हुआ. Simple है. And this is based on this law is based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy पर based है. इसको भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है? सिंपल स्टेटमेंट याद रखना, इट अपोजेस द कॉज. ठीक है, इसको ऐसा ही याद रखना, इट अपोजेस व्हाट? द कॉज. सिंपल. अब इसमें देखो, विल कम बैक टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हम बताएंगे. इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ईएमएफ इज जनरेटेड इन दिस कॉइल. इस कॉइल में ईएमएफ कब आएगा? चले देखिए, जब नॉर्थ पोल को आप पास में लेकर आए. तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि इट विल अपोज द कॉज. कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का पास में.
इसको कई तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे पहले जो हम लोग कि कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज व्हाट द नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो हम लोगों ने बोला जैसे ही नॉर्थ पोल को पास में लाओगे इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो ये कॉइल मैग्नेटाइज होगा, और कॉइल कैसा मैग्नेटाइज होगा, सच दैट दिस नियर एंड विल बिकम व्हाट अ नॉर्थ पोल। पास वाला एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर बताना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एन लिखने का तरीका, नॉर्थ पोल लिखने का तरीका, एन ऐसा लिख लीजिए और इसके एंड्स पर ये एरोस लगा दीजिए, दिस इज एन, और एस लिखने का ये तरीका, ये याद रखिए। तो अब हम लोग ये बोलेंगे नॉर्थ पोल को पास में लाए, इसमें करंट आया और करंट की वजह से ये मैग्नेटाइज हुआ। कैसा मैग्नेटाइज होगा कि नॉर्थ पोल को पास में नहीं आने देगा, नॉर्थ पोल को पास में नहीं आने देगा, तो ये एंड क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो ये नॉर्थ पोल अगर बनेगा तो ये देखो एन लिख लिया, एंड दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड। ये एन का ये एरो कहां की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, अच्छे से देखो, नॉर्थ पोल को पास में लाए, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया मतलब क्या आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा मतलब ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी। कैसी मैग्नेटाइज होगी, द नियर एंड ऑफ दिस विल बिकम अ नॉर्थ पोल। क्यों नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देगा। नॉर्थ पोल को पास में नहीं आने देने के लिए ये वाला एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। सो वी से दैट दिस एंड बिकम्स अ नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज दिस। इस वाले को देखो, इसमें व्हाट इज द रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नॉर्थ पोल का दूर जाना। नॉर्थ पोल अगर दूर जाएगा तो इसमें करंट आएगा, और इसमें अगर करंट आएगा तो ये मैग्नेटाइज होगा। कैसा मैग्नेटाइज होगा, सच दैट इट विल नॉट अलाउ द नॉर्थ पोल टू गो अवे। नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देना, नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देना मतलब इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या बन जाएगा, ये वाला एंड साउथ पोल बन जाएगा। सो वी आर राइटिंग डाउन दिस इज एस, और ये एस में ये एरो दिस मैचेस विद व्हाट द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड। अब इसमें देखो साउथ पोल का पास में आना, द रीजन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल इज व्हाट, साउथ पोल कमिंग नियर टू द कॉइल। साउथ पोल अगर पास में आएगा तो क्या होगा, साउथ पोल अगर पास में आएगा तो इसमें करंट आएगा, करंट आएगा मतलब ये मैग्नेटाइज होगा। और कैसा मैग्नेटाइज होगा, कि इसको पास में नहीं आने देना, और पास में नहीं आने देने के लिए दिस एंड विल बिकम अ साउथ पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सिमिलर। साउथ पोल का दूर जाना, तो इसमें साउथ पोल के दूर जाने पर इसमें करंट आया, इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस ईएमएफ आया मतलब करंट आया, मतलब ये मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा मतलब ये कैसा मैग्नेटाइज होगा, इसको दूर नहीं जाने देगा। दूर नहीं जाने देने के लिए ये एंड के साथ बनना चाहिए नॉर्थ पोल, दिस एंड बिकम्स अ नॉर्थ पोल। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब इसमें हाउ डज दिस सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी समझो अच्छे से देखो। हमने बोला फर्स्ट डायग्राम, वी जस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डायग्राम। नॉर्थ पोल पास में आएगा, नॉर्थ पोल के पास में आने पर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया मतलब करंट आएगा, करंट आने की वजह से मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज कैसा होगा कि नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देगा। अब अगर ये इसको पास नहीं आने देना चाहता है तो ये एंड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल बन गया, अब आप इसको पास में लाओगे तो क्या होगा, वर्क विल बी डन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द रिपल्शन। अब जैसे ही पास में लाए, सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझना, इसको पास में लाए, करंट आया, करंट की वजह से मैग्नेटाइज हुआ, ये वाला एंड क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। अब पास में लाओगे तो क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, रिपल्शन के अगेंस्ट। सो वी से दैट वर्क विल बी डन अगेंस्ट रिपल्शन, एंड दिस वर्क व्हिच इज डन अगेंस्ट द रिपल्शन हम पास में ला रहे हैं, ये नॉर्थ पोल पास में नहीं आने दे रहा। सो वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन
will get converted into electrical energy. So here we say that work is getting converted into what? Electricity. Yeah, electrical energy. So this is how we can explain what the law of conservation of energy. कैसा इसमें बता सकते हैं, बताओ जरा। इसमें क्या है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इसकी वजह से इसमें करंट आया, और इसमें अगर करंट आएगा, तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज कैसा होगा कि नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगा, नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देंगे, ये साउथ पोल बन जाएगा। अब दूर ले जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको दूर ले जा रहा है और ये साउथ पोल क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो देयर इज व्हाट एन अट्रैक्शन बिटवीन द टू, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अभी हमें इसको दूर लेकर जा रहा है। सो वर्क विल बी डन अगेंस्ट व्हाट, द अट्रैक्शन, एंड दिस वर्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें मोशनल ईएमएफ। Next topic, motional EMF. Suppose this is a uniform magnetic field. ये कैसी magnetic field है बताओ? Direction of this magnetic field perpendicular to the paper and inwards. And here you are having a rectangular frame. इसको थोड़ा सा बड़ा बना दी, just to differentiate this from the remaining part of the frame. PQ can be moved over the frame. ये एक ऐसा मेटालिक फ्रेम है और इसके ऊपर ये रॉड है जिसको भी आप मूव कर सकते हैं, अंदर या बाहर जैसा ले जाना चाहें वैसा भी आप मूव कर सकते हैं। Suppose this is moved with a velocity v in inward direction. इस रॉड को अभी हम लोग कहाँ अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। In this particular topic, two methods are specified by or given in the NCERT, and we will be discussing both of these क्योंकि दोनों इंटरेस्टिंग है। PQ को अभी हम लोग अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। The distance RQ, this is changing, we are writing this is x. इसको x लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे कि आप इस रॉड को चलाओगे, what will happen? इस रॉड को अंदर की तरफ चलाने पर what will happen? The value of x will change. x की वैल्यू इसमें चेंज होगी। अब suppose the length of the rod is l. अब जैसे से ये रॉड PQ अंदर की तरफ चलेगी तो क्या होगा? PQ moves inwards. The area enclosed, don't shade this, अभी हम सिर्फ आपको समझाने के लिए शेड कर रहे हैं। The area PQRS, what happens to area PQRS? This decreases. ये area PQRS जो है वो डिक्रीज होगा
और फ्लक्स एसोसिएटेड विद phi b will be equal to b into a into cos theta. Cos theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा इज व्हाट? थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. एरिया इसमें कौन सा? दिस इज PQRS, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल. डायरेक्शन ऑफ एरिया इज गिवन बाय व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ये PQRS, ये PQRS जो एरिया है, इसका ये जो प्लेन है, इसका जो नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है. So we can write down this as b into a into cos 0 और phi b की वैल्यू एरिया कितना आएगा? एरिया बताओ इस रेक्टेंगुलर ट्यूब का L into x. This is rectangular in shape. ये L है x. और E की वैल्यू according to the second statement of Faraday is given by minus d phi b by dt minus d by dt of phi b कितना है? phi b is what? b into L into x. क्या चीज बाहर ले सकते हैं? b है. Constant quantities can be taken out and these are what? b है. और ये क्या है? dx by dt. dx by dt क्या है? The rate at which the value of x is changing. और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये अभी बोला ये PQ रॉड को अभी आप अंदर की तरफ चला रहे हैं. With a speed what? v. मतलब the rate at which x is changing with respect to time. ये बता ये कितना आएगा dx by dt की वैल्यू? v के बराबर आएगा. v आएगा कि माइनस v आएगा? माइनस. क्योंकि as time increases, ध्यान से देखना ये चीज, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने पर what is happening? The value of x is decreasing. मतलब क्या चीज पॉजिटिव है? टाइम पॉजिटिव है और dx की वैल्यू नेगेटिव है. So we can write this down as b into L into what? Minus. This is b L b. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कैसा आएगा देखकर बताओ उसको. कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? मूवमेंट ऑफ द रॉड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. एक ये कॉज बोल सकते हैं. दूसरा बहुत सारे कॉज बोल सकते हैं. और क्या कॉज बोल सकते हैं? सपोज इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, the cause of induced EMF always is what? The change in flux. तो यहाँ पर change in flux क्या है? Change in flux किसकी वजह से? area decrease हो रहा है. So we say that this is very important कि flux decreases. This is the cause of induced EMF. Cause of induced EMF is what? Flux is decreasing. Flux decrease हो रहा है, मतलब flux अगर decrease हो रहा है, क्यों decrease हो रहा है? Because area decrease. Area decrease हो रहा है, इसकी वजह से flux decrease हो रहा है, मतलब इसमें एक induced current आएगा. और ये induced current क्या होगा? ये flux को कम नहीं होने देगा. This will try to induce EMF. Induced EMF tries to oppose the cause.
और कॉज क्या है? फ्लक्स का कम होना। तो ये फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, फ्लक्स को बढ़ाएगा। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए एरिया को तो नहीं बढ़ा सकता, क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो करंट आएगा उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ? कहने लगे अंदर की तरफ आएगी। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा? इसमें क्लॉकवाइज आना। So this will be what the direction of induced current. दूसरा एक और तरीका, और तरीका बताओ कैसे अभी हम इंड्यूस ईएमएफ बता सकते हैं। जो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने बोला था, अभी हमने उसको डिस्कस किया था। The cause is what? Movement of the conductor towards what? The inner side. अब इसमें क्या चीज अप्लाई होगी, इसको अच्छे से समझना। अब हम लोग ने इसमें ये बोला कि आप इस कंडक्टर को इस मेटालिक फ्रेम पर चलाएंगे तो इसमें करंट आ गया। करंट कैसा है अच्छे से समझना। दिस इज व्हाट पीक्यू, पीक्यू में करंट ऐसा है। क्या होगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर फोर्स आएगा। फोर्स कैसा आएगा बताओ जरा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन अगर बताना है तो कौन सा वेक्टर फॉर्म यूज करूं? फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट नीचे की तरफ आने की वजह से फोर्स कैसा लग रहा है? राइट की तरफ। अब हमें इसको अंदर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क विल बी डन। तो ये अब हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, अब हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें alternative method. Alternative method में we are drawing a separate diagram. We are drawing this conductor slightly thick just to explain. अब when PQ is moved inwards, PQ को अगर हम लोग अंदर की तरफ चलाएंगे, then all the positive charges, just try to understand. If this PQ is moving inwards, then all the positive charges, suppose this is having a positive charge plus Q. Then what will happen? This plus Q is moving inwards. ये plus Q अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। और फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? फोर्स की वैल्यू इज गिवन बाय Q into V into B into sin theta. I am not writing theta. Theta कितना होगा? Theta is the angle between velocity and magnetic field. वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, इसके अंदर का जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्यों?
क्योंकि ये कंडक्टर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहने लगे v वेलोसिटी से. So we say that the angle between velocity लेफ्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ, अंदर की तरफ. तो इनके बीच में एंगल कितना आता है, 90. और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा बताओ जरा. फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन अगर आपको बताना है तो फिर से वेक्टर फॉर्म यूज करो. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वेलोसिटी. कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है. फोर्स एक्टिंग ऑन दी पॉजिटिव चार्ज विल बी डाउनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए सारे पॉजिटिव चार्जेस इसके कहां की तरफ, नीचे की तरफ चलेंगे. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डाउनवर्ड. एक और तरीका समझने का, और इसमें अभी हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे की तरफ अगर चल रहे हैं तो करंट भी नीचे की तरफ आएगा, और करंट अगर नीचे की तरफ आएगा, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब अच्छे सुनना, वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम P to Q. वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स कितना है, Q V B है, और डिस्टेंस कितना है, P से Q तक चार्जेस को चलाने में कितना डिस्टेंस आ गया, कहने लगे L. ये टोटल वर्क आ जाएगा. ये टोटल वर्क किसमें, वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम P to Q, एंड वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज. दिस गिव्स यू व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस और द EMF. So EMF will be Q VB L divided by Q. So this is B into V into L. नोट कर लो जल्दी से. वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, क्योंकि अभी हम कहते हैं फोर्स अगर है तो वर्क आएगा. वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम. इसमें अभी वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स इज व्हाट, QVB इनटू व्हाट, द डिस्टेंस, एंड वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज क्या दे देगा, इंड्यूसिंग. और एक्सटर्नल एजेंसी कोई है नहीं यहां पर वर्क करने के लिए. वर्क इज डन बाय व्हाट, द फोर्स which is created by what, the magnet. Clear? Next topic. Next topic is inductance. इंडक्टेंस में अभी हम बेसिकली दो चीजें डिस्कस करेंगे. सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन. लेकिन ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स में नहीं. फर्स्ट वी डिस्कस इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म. इसमें एक टर्म बहुत यूज करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, द फ्लक्स लिंकेजेस.
flux linkage, this is represented by n phi. N is what? The number of turns. Phi is what? The flux linked with each turn. And this flux linkage is found to be proportional to I. n phi proportional to I क्यों होता है? कोई justification इसका? This is given directly in the NCERT. मतलब no justification is required, but still conceptually अगर इसको discuss करें, why is this proportional to I? देखो n phi की अगर बात करें, n phi n तो यही लिखा हुआ है, phi क्या आ जाएगा? b into a. तो इसमें कौन सा टर्म है जो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? So we say that this term is directly proportional to I. Therefore, n phi is proportional to I. N phi is proportional to I. And n phi will be equal to a constant, and this constant will be termed as what? Inductance. और यूनिट्स क्या जाएंगे इसकी? इंडक्टेंस की. इंडक्टेंस की यूनिट्स बताओ. This will be Weber per ampere. Dimensional formula we discussed for Weber's today. बताओ जरा. ml square T minus I minus 1 divided by I. So this will be ml square T minus 2 and I minus 2. अब नेक्स्ट सेशन. अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इसमें म्यूचुअल इंडक्शन. फर्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन. Mutual induction, as the name suggests, what you require is two coils. यहाँ पर दो coils की जरूरत पड़ेगी और एक में करंट पास करेंगे या करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. अब now suppose we are having two coils which are magnetically linked to each other. दो coils अभी हम ले रहे हैं. This is named as S1. इसको S1 नाम दे दिए. And the second one is
this is named as S2. The inner one is S1 and the outer one is S2. अब इसमें ये प्रोसेस अभी हम लोग जो म्यूचुअल इंडक्शन का है वो डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि किसी एक में आप करंट पास करोगे और उसकी वजह से मैग्नेटाइज हो गए। सपोज इफ यू आर पासिंग करंट थ्रू S2, आपने इसमें I2 करंट पास किया, देन दिस S2 विल गेट मैग्नेटाइज्ड, S2 मैग्नेटाइज होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक होगी? S1 के साथ लिंक होगी। और अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो S2 की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर S1 के साथ लिंक होगी, दिस विल इंड्यूस व्हाट? अ करंट इन S1। ये S1 में एक करंट इंड्यूस करेगा। नाउ सपोज current I2 is passed through S2. The radius of the inner is R1. The radius of the outer is R2. R2 की कहीं पर किसी भी टॉपिक में जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अगर आप लोग R2 नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी दैट विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल दिस टॉपिक। अब इसमें if current is passed through S2, this will generate a magnetic field in second. Magnetic field generated by second कितना आ जाएगा? S2 की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? कितना आ जाएगा? B2 will be equal to mu 0 क्या आएगा? N2 into I2। और ये मैग्नेटिक फील्ड अच्छे देखो, किसके साथ लिंक हो जाएगी? This will get linked with the terms of S1. B2 gets linked with S1. B2 gets linked with S1. And EMF किस में जनरेट होगा? EMF किस में जनरेट होगा? इसमें। अगर आपने करंट S2 में पास किया, सेकंड वाले ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक हो गई? S1 के साथ लिंक हो गई। सो वी से दैट EMF विल बी जनरेटेड in S1, and the flux linkages of the first, क्योंकि सेकेंड की मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के साथ लिंक हुई, तो फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ द फर्स्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? I2। N1 phi1 will be proportional to what? I2, and N1 phi1 will be equal to, यहाँ पर proportionality sign हटेगा, and here you are having what? M, and this will be written as M into I2। ये M क्या होगा? ये M को क्या लिखेंगे अभी लोग? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट, क्योंकि इंडक्शन किसमें आएगा? इंडक्शन विल बी इन द फर्स्ट, EMF is generated in the first with respect to second. So M12 is coefficient of mutual induction of first with respect to what? With respect to second.
अब N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? दिस कैन बी रिटन एज N1 into L। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन व्हाट? द लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का तरीका क्या रहेगा? N into L, N1 into L। phi1 कैसे लिखेंगे? फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट केस निकाला, दिस विल बी इक्वल टू V2। V2 क्यों? क्योंकि सेकंड में करंट पास किया, सेकंड ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? V2 इनटू क्या? A1। V2 into A1 will be equal to M12 into I2, ऐसा लिख सकते हैं। B2 की वैल्यू रखो, N1 into L। B2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? μ0 N2 into I2। एरिया I2 इसमें कैंसिल होगा, तो M12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? दिस विल बी इक्वल टू μ0 N1 N2 L into pi r also। उधर पीछे वाली क्लास में, उधर वाली पीछे वाली क्लास में क्लियर। अब इसके बाद इसमें ये चीज अच्छे से समझना कि आपने ये सेकंड वाले में करंट पास किया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी V2, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक हुई? दिस गेट्स लिंक्ड विद द टर्न्स ऑफ द फर्स्ट, ये S1 के साथ है। इसलिए अभी हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा है? N1 पर। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसके साथ कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुई है? V2। अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ ट्राई टू चेंज द करंट चेंज करेंगे। करंट चेंज करेंगे मतलब अभी हम लोगों ने करंट S2 में पास किया था, नाउ वी ट्राई टू पास करंट इन S1। डायग्राम वही आएगा, बट नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन वी आर ड्राइंग अ सेपरेट डायग्राम। आपके पास ओरिजिनल डायग्राम है ऑलरेडी। दिस इज S1। अब इसमें अभी हम लोग ने कितना करंट पास किया? I1। ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? इसको अच्छे से देखना है क्योंकि यही है कंफ्यूजन वाला। ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? V1। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? μ0 N1 I1। ये किसके साथ लिंक होगी? हम ये पूरी कॉइल नहीं बना रहे, ये किसके साथ लिंक होगी? विद द टर्न्स ऑफ S2। S2 का साइज बड़ा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या पूरी कॉइल के साथ लिंक हो जाएगी? कितना एरिया इन्वॉल्व होगा? इसने जितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, अभी हम लोगों को मालूम है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है कहां पर एग्जिस्ट करती है? ओनली इनसाइड। तो इसने ये V1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल इट गेट लिंक्ड विद द एंटायर एरिया ऑफ S2? पूरे एरिया के साथ लिंक नहीं, सिर्फ इतने से एरिया के साथ।
पूरा एरिया नहीं आएगा S2 का। कौन सा वाला एरिया आएगा? ओनली द एरिया विच इज इक्वल टू व्हाट? द एरिया ऑफ S1। मेन चीज बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है। और स्टूडेंट्स को ये ही क्लियर नहीं रहता कि व्हाई दे आर टेकिंग द एरिया ऑफ S1 इन बोथ केसेस। उसमें तो क्लियर, लेकिन इस वाले पर हम बोलेंगे कि आपको S2 का एरिया लेना चाहिए, लेकिन S2 का एरिया नहीं लेंगे। पूरा एरिया क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इधर वाले एरिया को लेने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो अब हम लोगों ने बोला करंट किस में पास किया? S1 में पास किया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हुई? V1। ये किसके साथ लिंक हुई? S2 के साथ। तो फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ सेकेंड will be proportional to the current passing through first। अब इसमें क्या आ जाएगा? N2 into phi2 will be equal to M into I1। अब यहां पर M क्या लिखेंगे? करंट फर्स्ट में पास किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में? सेकंड में आया, इसलिए इंडक्शन किसका है? ये सेकंड का है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? द फर्स्ट। अब N2 को क्या लिख लोगे? N2 into L। phi2 को क्या लिख लोगे? phi2 को क्या लिख लोगे? B1 into what? A1। फ्लक्स अगर सेकंड का निकाल रहे हो तो सेकंड का एरिया नहीं लेना। सेकंड का एरिया क्यों नहीं लेना? क्योंकि फर्स्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, सिर्फ उतना एरिया जो है वो सेकंड का लेंगे। विल बी इक्वल टू M21 into I1। तो ये N2 into L आया। B1 को क्या लिख दिया? μ0 N1 I1 into क्या? pi R1 स्क्वायर। तो अब ये लोग यही कहते हैं कि सबसे अच्छा कंफ्यूजन नहीं रखने का तरीका क्या है? जब आप डायग्राम ड्रॉ करो तो उसमें R2 नहीं ड्रॉ करना। जस्ट रिमेंबर दैट R2 इज नॉट टू। आपको याद रहेगा कि हाँ R2 का कोई काम नहीं, I1 इसमें कैंसिल होगा और M21 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? μ0 N1 N2 L pi R1 स्क्वायर। और इन दोनों रिलेशनशिप, कौन से दोनों रिलेशनशिप? M12 और M21 से क्या मिलेगा? M12 is equal to what? M21। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिस टर्म्स आउट टू बी सेम। ये सेम आता है। करंट आप S1 में पास करें या S2 में पास करें, द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम। Can we have a break? Or should we have a break? Next topic, self-induction। Self-induction में self-induction, as the name suggests कि इसमें EMF will be induced in a coil due to change of current in the same coil। Process of inducing current in a coil due to change of current in the same coil। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर वी गो ऑन टू द कैलकुलेशंस पार्ट। सपोज दिस इज अ कॉइल। इसको जैसे ही अभी हम लोग स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट इन द सर्कल विल टेंड टू इंक्रीज। करंट जो है स्टार्टिंग में 0 है, करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी? 0 है। Finally it will reach some value, suppose this is 5 amperes,
करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 to 5, ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल क्या होता है, म्यू 0 Ni, और करंट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, magnetic field will also increase. So we said that the magnetic field also increases from 0 to some value, 0 to I लेते हैं, और ये करंट लेते हैं. Current increases from 0 to I, magnetic field increases from 0 to I. Flux क्या होता है? Flux is what? V into A. अब क्या होगा? Magnetic field अगर increase हो रही है, then what happens? The flux also increases from 0 to 5, flux increase होगा, और flux अगर increase होगा तो this flux will generate a EMF in the same coil. तो current increase हुआ इस coil में, और इस current के increase होने की वजह से magnetic field increase हुई. ये magnetic field खुद के turns के साथ लिंक हुई, और changing magnetic field अगर इसके साथ लिंक हुई तो flux भी increase हुआ, और फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ आएगा, और ये ईएमएफ जो है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज. कॉज क्या है? करंट का बढ़ना. तो ये करंट को बढ़ने नहीं देगा. करंट को बढ़ने नहीं देगा मतलब इट विल जनरेट व्हाट, इंड्यूस्ड करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर इंड्यूस्ड करंट कैसा आएगा? इट विल अपोज द कॉज. तो ये याद रखना, स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर इंड्यूस करंट कैसा आएगा? ऑपोजिट टू द मेन करंट. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, सपोज इसको स्विच ऑफ करें. जब स्विच ऑफ करेंगे तब क्या होगा? हम लोग इसको, जैसे अभी हमने बोला था, स्विच ऑन करने पर करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब इसमें करंट आएगा, और करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? इट विल अपोज द कॉज. और कॉज क्या है? करंट का बढ़ना. तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में. अब करंट मान लीजिए आफ्टर सम टाइम इट हैज रीच्ड सम स्टेडी वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और करंट अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो गई मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया मतलब कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा. फिर उसके बाद कब करंट आएगा? जब स्विच ऑफ करेंगे. जब स्विच ऑफ करेंगे तब क्या होगा? वी आर ड्राइंग अ सेपरेट डायग्राम फॉर दिस. Now this is switched off. अगर स्विच ऑफ कर दिया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी I से 0. करंट की वैल्यू क्या होगी? I से 0 डिक्रीज होगी, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा? इसमें इंड्यूस करंट आएगा. इंड्यूस करंट कैसा आएगा? इट विल अपोज द कॉज. कॉज क्या है? करंट का कम होना. तो स्विच ऑफ करने में करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? ये करंट को कम नहीं होने देगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मेन करंट आ रहा था उसी डायरेक्शन में करंट है. तो अब इसमें ये याद रखना कि इंड्यूस्ड करंट और मेन करंट दोनों का डायरेक्शन सेम कब होता है? जब स्विच ऑफ करते हैं, मतलब सर्किट को ब्रेक करते हैं. सर्किट को ब्रेक करते हैं तो इंड्यूस करंट और मेन करंट का डायरेक्शन कैसा रहता है? और इंड्यूस करंट और मेन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कब होता है? जब हम लोग सर्किट को क्या स्विच ऑन करते हैं. जैसे करंट को या सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. तो ये चीज याद रखना. दिस गिव्स यू व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द सेम कॉइल. करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल.
इसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और इसी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट आ रहा है, इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और सेल्फ इंडक्शन का डायरेक्शन या सेल्फ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, ये अभी लोग इसको बता देंगे। अब इसमें we'll discuss the mathematical part of it. Self induction. सेल्फ इंडक्शन में फ्लक्स लिंकेज ऑफ एनी कॉइल N5, फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल, flux linkage of the coil is what? N5. This N5 is found to be proportional to what? I. N5 proportional to क्या रहेगा? I रहेगा। अब इसमें N5 लिखा है और ये proportional sign हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? Constant आ जाएगा। And this will be what? L. L क्या है? Coefficient of self induction. This is coefficient of self induction. Units क्या है? फिर से बता सकते हैं वैसे ही जैसे ये वेबर्स पर एम्पियर, इसको अभी हम लोग क्या हेनरी भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज हेनरी। Next topic in self induction of a solenoid. Self induction of a solenoid. Self induction. अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता दें। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट विल बी यूजिंग E इज व्हाट माइनस n d5 बाय dt होता है, माइनस d बाय dt ऑफ क्या लिख लिया n5 और माइनस d बाय dt ऑफ N5 की जगह अभी हम लोग क्या Li लिख सकते हैं। N5 की जगह अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं Li। सो अनदर फार्मूला फॉर दिस इज E इज इक्वल टू माइनस L di by dt है। एक और फार्मूला जो अभी हमें सेल्फ इंडक्शन के कारण मिलता है वो ये है। सेल्फ इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है? करंट को बढ़ने नहीं देता। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जीरो से करंट आई तक अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब इंड्यूस करंट कैसा आएगा? ये करंट को बढ़ने नहीं देता। ऐसे ही जब स्विच ऑफ करते हैं तब क्या होता है? स्विच ऑफ करने पर करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, मतलब इंड्यूस करंट आएगा। और इंड्यूस करंट कैसा आएगा? कि वो करंट को कम नहीं होने देगा। तो ये करंट को, ये सेल्फ इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो करंट को कम भी नहीं होने देता और बढ़ने भी नहीं देता। इसलिए सेल्फ इंडक्शन को या सेल्फ इंडक्टेंस को अभी हम लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये टॉपिक पर अभी मायने का एक फैक्ट और याद आ गया जिस पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस पर बेस कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सपोज इफ यू आर हैविंग अ बल्ब
which is connected to a cell with the help of a key. और एक और identical बल्ब ले लिया आपने, but now this is connected to the cell using an inductance. Same wattage का है, मतलब same power का है. इन दोनों को अगर स्विच ऑन करेंगे K और K डैश को, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे फुल इल्यूमिनेशन पर ग्लो करेगा, मतलब जैसे घरों में बल्ब होते हैं, स्विच ऑन किया फुल ब्राइटनेस तुरंत मिल जाती है. लेकिन अगर इंडक्टेंस के थ्रू अगर आपने बल्ब को लगाया तो इंडक्टेंस क्या करता है? इट अपोजेस द राइज ऑफ करंट इन द सर्किट. ये करंट को बढ़ने नहीं देता, करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता. करंट की वैल्यू फाइनली उतनी ही आती है जितनी बिना इसके. जैसे मान लीजिए ये बल्ब और ये सेल आइडेंटिकल है, ये बल्ब और ये सेल भी आइडेंटिकल है, दोनों में फुल वैल्यू ऑफ करंट मान लो 10 एम्पियर्स है, क्योंकि सेल आइडेंटिकल है, बल्ब भी आइडेंटिकल है. करंट मान लो 5 एम्पियर्स है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तुरंत मिल जाएगी. लेकिन इंडक्टेंस के थ्रू अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा? दिस विल प्रोवाइड अ टाइम डिले. ये क्योंकि करंट को बढ़ने नहीं देगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 5 एम्पियर आएगी, लेकिन इसको 5 एम्पियर तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा. तो व्हाट विल हैपन? दोनों को स्विच ऑन करने पर फुल इल्यूमिनेशन इज ऑब्टेन्ड इंस्टेंटली. इसमें द बल्ब विल ग्रो टू फुल इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग सम इंटरवल ऑफ टाइम. इट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन. और इसमें जब स्विच ऑफ करेंगे, जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तुरंत बंद हो जाएगा, इसका इल्यूमिनेशन स्लिप हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या होगा? ये फिर से सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस है. जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा? स्विच ऑफ करने पर ये इसका इल्यूमिनेशन जीरो होगा, तो लेकिन एक टाइम डिले के साथ, मतलब इसका इल्यूमिनेशन धीरे धीरे कम होते होते फाइनली इट विल डिक्रीज टू जीरो वैल्यू, बट अ टाइम डिले विल बी प्रोवाइडेड ड्यू टू व्हाट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ठीक, अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे. अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि N5 is proportional to I है, और N5 will be equal to what? Li. N को अभी हम लोग क्या लिखेंगे? N into L. 5 को क्या लिखोगे? B into A. और ये क्या है? L into I. ये क्या करेगा? N into L. B को क्या लिखोगे? B का फॉर्मूला सोलेनॉइड का μ0 Ni. ठीक, तो ये B की वैल्यू साथ में लिखते जाना है, μ0 Ni इनटू क्या? पाई आर स्क्वायर. तो ये Li, इसमें I और I कैंसिल होगा, L की वैल्यू μ0 N स्क्वायर L μ0 N स्क्वायर L इनटू पाई आर स्क्वायर. और ये सेल्फ इंडक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको देखकर बता सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड. ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड मतलब एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और किसके ऊपर? रेडियस मतलब साइज ऑफ द सोलेनॉइड के ऊपर. एंड दिस इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर वाइंडिंग एंड के ऊपर. एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कोर. कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसके जो अभी हम लोग ने इस सोलेनॉइड के मटेरियल सोलेनॉइड के कोर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो दिस डिपेंड्स ऑन, एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड and the material of the core. Next topic. Magnetic potential energy.
नेक्स्ट टॉपिक, ये सोलेनॉइड के लिए डिराइव करेंगे, बट दिस विल बी अ जनरल रिलेशनशिप व्हिच कैन बी यूज्ड एनीवेयर। अब एनर्जी कहीं पर भी अभी हम लोगों को निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। एनर्जी इज व्हाट? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? V into I into T। तो हम लोग सिंस वी आर टेकिंग स्मॉल वर्क डन तो क्या स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया, V की जगह क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। सो dW will be equal to what? dW will be equal to E into I into dt। VIT वाला फॉर्मूला है। E की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिखा हुआ है, we are dropping what the minus sign, L di by dt। E की वैल्यू रख दी, ये E की वैल्यू है, और इधर पर I है और यहाँ पर dt है। dt और dt कट जाएगा, क्या आ जाएगा? L I d। दिस इज व्हाट d। Total electrical work done will be what? The potential energy. So U will be equal to W, will be equal to integration of dW। कितना मिल जाएगा? L I di। इसमें क्या L बाहर आ जाएगा, I है di, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L into I to the power of 1 plus 1 upon 1 plus 1। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली रिलेशन? हाफ ऑफ L I स्क्वायर। नोट कर लो। सो पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड विल बी हाफ ऑफ L I स्क्वायर। अब इसमें जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। U इज हाफ ऑफ L I स्क्वायर। इसमें B क्या होगा? B इज म्यू 0 N I फॉर अ सोलेनॉइड। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B अपॉन म्यू 0 इंटू N। I की वैल्यू कितनी? B अपॉन म्यू 0। L की वैल्यू कितनी है? L अभी हम लोगों ने निकाला, देखो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? म्यू 0 N स्क्वायर L into pi r। So we are substituting these two values। ये दो वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करो, कितना आता है? हाफ L की वैल्यू म्यू 0 N स्क्वायर L इंटू पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? B स्क्वायर अपॉन म्यू 0 स्क्वायर N स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा इसमें? टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं। N स्क्वायर कैंसिल होगा, एक म्यू नॉट कैंसिल होगा। अब ये कितना आ जाएगा? B स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख लिया, ये लिख लिया। L लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर को अभी हम लोगों ने A लिख दिया। वी आर राइटिंग दिस पाई आर स्क्वायर एज A, इसको A लिख दिया। और कुछ छूटा क्या? A लिख लिया, A लिख लिया, 2 म्यू 0। तो इसमें अगर आप देखो लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी वॉल्यूम। सो वी से दैट U per unit volume
इसको अभी हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं. दिस इज व्हाट द वॉल्यूम. ये वॉल्यूम है, इसको ऐसा मत लिखना. दिस इज वॉल्यूम. सो दिस इज b square upon 2 mu 0 into the volume. Pause. So u will be equal to b square upon 2 mu 0 into volume, and u per unit volume, this is b square upon 2 mu 0. ये मैग्नेटिक एनर्जी है um. तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल u लिख देते हैं. तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला मिल गया, um इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 mu 0. नोट कर लो जल्दी. दिस इज सिमिलर टू द एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कैपेसिटर में हाफ एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर ऐसा कुछ आया है. सिमिलरिटी देखो दोनों में. इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. यहां पर कांस्टेंट म्यू 0 ऊपर आता था किसमें, सॉरी एप्सिलॉन 0 यहां पर ऊपर लिखा, यहां पर म्यू 0 नीचे लिखा. हाफ आया ही कहा है. Now we move on to the last topic of this chapter, AC generator. डॉक्टर नहीं? AC generator. तो AC generator is a device. नाम है इसका जनरेटर. जनरेट करना मतलब जनरेटर मतलब जनरेट कर रहा है. क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. At the cost of what? At the cost of mechanical energy. So this is a device which converts mechanical energy into electrical energy. ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. सो दिस इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल क्या है सर? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड. मतलब अभी लोग ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी लोग पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्या है कहने लगे B into A into cos θ. जब भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स को अगर आप चेंज करोगे तो क्या होगा, उसमें एक EMF आएगा. और अब हम लोग इसमें यही करने वाले हैं. अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे. और फ्लक्स को चेंज करने का अब तरीका क्या यूज करेंगे? वी विल बी चेंजिंग थीटा. थीटा को कैसे चेंज करेंगे? वी विल रोटेट अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी. आप किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे और सपोज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज ओमेगा. ओमेगा क्या होता है? कहने कि थीटा अपॉन टी. थीटा क्या है? द एंगल मूव डिवाइडेड बाय द टाइम. और वन फुल रोटेशन के लिए टी को अभी हम लोग कैपिटल टी लिख देते हैं. वन फुल रोटेशन के लिए ये 2 पाई आ जाएगा. तो प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे? दैट दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल और एनी शेप कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा. द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस
and if the flux changes then an EMF is induced in the coil. Simple. तो प्रिंसिपल में क्या क्या चीज लिखोगे कि this is based on the principle of what electromagnetic induction. Whenever flux associated with any coil changes an EMF is induced. और फ्लक्स को चेंज करने का तरीका यहाँ पर क्या ले रहे हैं इसमें वी आर रोटेटिंग अ कॉइल. हम लोग किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाले हैं. अब कंस्ट्रक्शन डिटेल्स वी आर हैविंग the two pole pieces north and south which will generate the required magnetic field, and a rectangular coil of area A is moved in a magnetic field. इसका बहुत डिटेल कंस्ट्रक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है because what we are interested in is the mathematical part. तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको अभी हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं. सपोज दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज ABCD एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इसको रोटेट करने का तरीका बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं. यू कैन यूज द विंड एनर्जी, यू कैन यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर. या बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं. और मोस्टली जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. एंड मैकेनिकल एनर्जी जो यूज करते हैं वो फ्लोइंग वाटर की है, बहते हुए पानी की मदद से अभी हम लोग इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं. और कॉइल को अगर रोटेट करेंगे तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, मतलब एक EMF आएगा. और इधर पर जो EMF जनरेट होगा उसको बाहर निकालने के लिए अभी हम लोग कार्बन रिंग्स स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं. दिस इज S1 एंड दिस इज S2 एंड दीज आर द टू कार्बन ब्लॉक्स B1 एंड B2. और यहाँ पर अभी हम लोग बोलते हैं ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है उस डायग्राम का जो NCERT में दिया है, एंड यू कैन यूज दिस इन द एग्जाम्स. AC जो यहाँ पर निकलेगा उसको हम लोग इन दो टर्मिनल से बाहर ले सकते हैं. S1 and S2 are the slip rings and B1 and B2 are what? The carbon brushes. ABCD, the rectangular coil, is termed as the armature coil. And the poles NNS, the field magnets, जिसके अंदर अभी हम लोग इस कॉइल को this generates the magnetic field required, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आर्मेचर को अभी हम लोग रोटेट करते हैं. और रोटेट करने पर थीटा की वैल्यू चेंज होगी, और थीटा अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो एक ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होगा. अब ये ऑल्टरनेटिंग EMF कैसे आएगा ये अब हम इसमें डिस्कस करेंगे. फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल B into A into क्या cos थीटा, B into A into cos थीटा की वैल्यू कितनी है ओमेगा इंटू टी. ये फ्लक्स आ गया. EMF which is induced according to the second statement of Faraday, ये E is what minus n d phi t by dt ऐसे कुछ आएगा.
डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या है? v इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी कैसे आया? थीटा की जगह ओमेगा टी रखा, कैसे? ओमेगा क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी। अब इसमें माइनस एन इंटू वी इंटू ए डी बाई डी टी ऑफ क्या? कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के साथ जो नंबर उससे मल्टीप्लाई करना, तो माइनस और माइनस मिलकर ये कितना? प्लस आ जाएगा। बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की बात। इसमें इसको अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग दिस एज E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या है? दिस इज द पीक वैल्यू, और ये कितना आ जाएगा? बी एन ए ओमेगा। तो E की वैल्यू आ गई E0 साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज एन अल्टरनेटिव टाइप ऑफ EMF। E की वैल्यू E0 साइन ओमेगा को क्या? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और इसका वेरिएशन जो है, इसका जो वेरिएशन है, ये वेरी क्यों कर रहा है? ये EMF वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टाइम का इनपुट आप किसको दे रहे हो? साइन फंक्शन को। तो जैसा साइन का ग्राफ आता है वैसा ही ग्राफ किसका? अल्टरनेटिंग EMF का मिलेगा। द शेप विल बी साइनोसॉइडल, साइन कर्व जैसा ही रहेगा। इसको डिटेल में अगर कैलकुलेट करना है, देन वी कैन राइट डाउन द वैल्यूज। ओमेगा को हम लोगों ने क्या लिखा? ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिखा है। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट t is equal to 0, we can substitute t is equal to t by 4, t is equal to t by 2, t is equal to 3t by 4, t is equal to capital T. You can substitute and solve. E कितना आ जाएगा? E की वैल्यू E0 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 0, और ये साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू इज व्हाट? 0। t by 4 पर कितना आएगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, बता दो। E0 साइन t by 4 कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी? साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये E0 आ जाएगा। t by 2 सब्स्टिट्यूट करो, t by 2 मतलब हाफ रूट इसे, ये कितना आ जाएगा? E is equal to E0 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू t by 2, ये कितना आ जाएगा? E0 साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी? 0 है। 3t by 4 पर सॉल्व करके बता जल्दी से। माइनस E0 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 3t by 4, साइन 3 पाई बाई 2, और ये साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यूज, और वैल्यूज अगर याद नहीं रहती तो इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि ये शेप बनाना है, तो ये याद रखना। साइन का ऐसा शेप होता है, नो नीड गोइंग, मतलब वैल्यूज अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है
कैन यूज दिस कैपिटल E is equal to कितना E0 sin 2 pi upon capital T into capital T या अगर E0 sin 2 pi and this will equal 0। तो इन सारी वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करें, अब रबिंग दिस पार्ट रब कर देना ये यहां पर ये टाइम ले लिया और यहां पर ये ईएमएफ ले लिया, ये E0 और यहां पर ये माइनस E0, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये कैपिटल T। T is equal to 0 पर E की वैल्यू 0 आएगी, T/4 पर कितनी है वैल्यू E0, दिस इज द वैल्यू। T/2 पर कितनी है, T/2 पर 0, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। 3T/4 पर कितना है माइनस E0, 3T/4 पर माइनस E0, दिस इज द वैल्यू। कैपिटल T पर दिस इज सो दिस विल बी द टाइप ऑफ ईएमएफ व्हिच इज जनरेटेड। तो ये कैसा ईएमएफ है, ये ऐसा ईएमएफ है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एंड दिस इज टर्म्ड एज एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। दिस नियरली फिनिशेस द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस लास्ट स्टेटमेंट से जो स्टार्ट जो है लास्ट स्टेटमेंट इसका E0 sin ओमेगा t एसी जनरेटर का, इस पर बेस्ड अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, which is what alternating current। That's it।